Hello and welcome to the Nobatra Learning Initiative. I'm Nandini and today is the day 2 of learning C programming. So let's start. Today we will learn about the basic concepts of C programming which can help you to create a C program from basic to complex level. So first we have to start it with the topic structure of C program. So the structure of C program includes 6 basic sections in which the first is the preprocessor section. The preprocessor section includes all the header files just like stdio.h and mat.h, etc. There are many more header files like hash include conio.h. Next is the definition. Definition includes the declaration of constant variable with the preprocessor hash defined, which is used to declare a constant. Just like the example, hash defined here is a preprocessor. Long is the type of variable and long 11 is the value for the variable. Third is the global declaration. Here we can also declare the global variable, function declaration and static v. Variables and functions are declared in the scope can be used anywhere in the program. Just like int num equals to 18 means int is the type of data, the type of the value that variable is storing. So int is the type of data, the value is stored in the variable. So num is the name of the variable and 18 is the value. And the statement is terminated by the semicolon. In C, all the statements are terminated by the semicolon except some, which we will learn in the later. Next is the main function. The main function वो फंक्शन होता है जहाँ पे हम सारी वो चीज़ लिखते हैं जिसको हमने प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करनी होती है. जितने भी फंक्शन अपन बनाते हैं उसको हम मेन फंक्शन में कॉल करते हैं जहाँ पे भी हमको उसका यूज करना होता है. सो द मेन फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम इज रिटन इन दिस सेक्शन. Operations like declaration and execution are performed inside the curly braces of the main function. Or return type of the main function can be int as well as void. Main function के return type int भी हो सकता है और void भी हो सकता है. Just like we will write, sometimes we write int main and sometimes we write void main. So that is void main tells the compiler that the program will not return any value, and int main tells the compiler that the program will return an integer value. Just void main and int main. Next, we have the sub program section. Here, the user defined functions are called in this program. The control of the program is shifted to the called function whenever they are called from the main or outside the main function. They are specified as per the requirement of the programmer. Just like here, a function is declared int sum with the parameters int x and int y, and in the body of the function it includes return x plus y. Return is the value that it return x plus y. So x plus y is a numerical value in the integer form. So here the return value is int. Next, we have the return type. The function declaration must specify the data type of the value it will return. This is placed before the function name. If a function does not return a value, it return type should be void. अगर function कोई value return नहीं कर रहा है, मतलब उसकी return value int नहीं है, तो it must be void. Just like here, int main and it returns 0 means it does not return any value. So here we can write void main. So that's all for the next we will see the input output functions in C. Here there are many functions to input data and output data in C program, but the main one are the printf and scanf. Here the printf is used for printing formatted output to the standard output. Means whatever we have to print, we have to write it in the printf section. Just like this, print hello and %s. Your age is %d. Here the %s is for string, which means name, and the %d is for age, which number, which means the age. So the name is in string form, so we have to write %s, and the age is in numerical form, so we have to write %d in the integer form. And the second one is the scanf. Scanf is used for reading formatting input from the standard इनपुट. सो स्कैनफ फंक्शन जब यूज आता है जब हमको कोई डेटा इनपुट कराना होता है फिर उसकी वैल्यू प्रिंट करानी होती है. जस्ट टू इनपुट डेटा वी यूज स्कैनफ जस्ट लाइक दिस. Here's the example scanf %d and %f. %d is used to input the integer values. Here we can write
ampersand and the variable name in which we want to insert the value, and %f is used to insert the float, input the float values, and here we can write the ampersand and write the name of the variable in which we want to enter the float values. नेक्स्ट टॉपिक इज द कीवर्ड्स. कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि प्री डिफाइंड और रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जिनका सी की लाइब्रेरी में एक स्पेशल मीनिंग होता है, कंपाइलर के लिए एक स्पेशल मीनिंग होता है. ये सिंटेक्स का पार्ट होता है और आइडेंटिफायर्स के जैसे यूज नहीं किए जा सकते. सी में 32 कीवर्ड्स होते हैं जो कि दिए हुए हैं, जस्ट लाइक ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, एनम, एक्सटर्न, फ्लोट, फॉर, गो टू, इफ, int, long, register, return, short, signed, size of, static, structure, switch, type, def, union, unsigned, void, violate, and while. These are the keywords that are used in the C programs as a part of syntax, so that it can be used as the name of the variable or identifiers or constant in the C programs. Least important but very useful part of the C program are the comments. So what are comments? Comments क्या होता है? Comments वो नॉन एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस होती है प्रोग्राम के सोर्स कोड में, जो एक तरीके से एक्सप्लेनेटरी नोट्स के जैसे काम करती है, टू नो what why the codes are written in the C language, why the function is used, why the variable is created, why the statement is printed in the C language. इसको कंपाइलेशन प्रोसेस में कंपाइलर इग्नोर करता है और इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बट ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है ह्यूमन रीडर्स ऑफ द कोड. ये इन्हेंस करती है रीडेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी और कोलैबोरेशन को. सी में 2 टाइप्स के कमेंट्स होता है. फर्स्ट इज द सिंगल लाइन कमेंट्स एंड सेकंड इज द मल्टी लाइन कमेंट्स. सिंगल लाइन कमेंट्स लिखे जाते हैं 2 फॉरवर्ड स्लैश के बाद. जो भी स्टेटमेंट होती है वो सिंगल लाइन कमेंट्स होती है, जस्ट लाइक दिस 2 forward slash, and this is a single line comment. Or next, the code is the int x equals to 10. So here the variable is initialized x to 10. So this initialized variable x to 10 is the single line comment. Next is the multi-line comment or block comments. These comments begin with the forward slash followed by an asterisk and end with the asterisk followed by a forward slash. All the text between these two symbols include a cross multiple line comment, just like the example int main and the function. And here's the comment. This is a multi-line comment. It can span across several lines to provide comprehensive introduction. So मल्टी लाइन कमेंट्स में हम कितने भी लाइन के कमेंट्स लिख सकते हैं कि हमने कोड क्यों यूज किया, उसको पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमने कोड क्यों यूज किया. लेकिन सिंगल लाइन कमेंट्स में सिर्फ सिंगल लाइन में ही लिखा जाता है कि हमने कोड क्यों यूज किया, या कोई स्टेटमेंट क्यों लिखी, या कोई फंक्शन क्यों डिक्लेयर किया. दैट्स ऑल फॉर दिस. नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द सी प्रोग्राम आर द वेरिएबल्स. वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो वेरिएबल्स वो कंटेनर्स या ब्लॉक्स होते हैं जो डेटा वैल्यू स्टोर करते हैं, जैसे कि नंबर और कैरेक्टर. हम जो भी डेटा स्टोर कराते हैं प्रोग्राम में वो या तो नंबर फॉर्म में होता है या कैरेक्टर फॉर्म में होता है. सो जो भी ये सब डेटा स्टोर करते हैं उनको वेरिएबल्स कहा जाता है. वेरिएबल्स एक कंटेनर के जैसे होते हैं जिनमें डेटा वैल्यू स्टोर होती है. इन सी देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स. सी में बहुत टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं डिफाइंड विद डिफरेंट कीवर्ड्स. एग्जाम्पल है जैसे int store integer values, whole numbers without decimals, such as 1 2 3 or -1 2 3. int सारे whole numbers को include store करता है, और float सारे फ्लोटिंग पॉइंट मतलब कि डेसिमल नंबर्स को स्टोर करता है. कैर सारे सिंगल कैरेक्टर स्टोर करता है विच आर सराउंडेड बाय द सिंगल कोट्स. Now, how to create or declare variables. So, to create a variable, specify the type and assign its value. इसका syntax होता है type variable name equals to value. इसका example देखते हैं int. Here int is the type of the variable in which we want to store the value. So in the variable we store the value of integer type. Next, my_num. My_num is the name of the variable in which we have to store the value, and semicolon. Each statement is terminated by the semicolon. Next, my_num equals to 15. It is the initialization of the variable. The variable is my_num, and here we initialize the value of 15 to my_num. Next, output variables. We have already inputted the value
in the variables. How now, how to output the value of variables? We use the printf function to output the value of variables, just like this. Printf hello world. We have to write all the things we want to print in the printf function so that it can be printed in the black screen. Next are the constants. Constants क्या होते हैं? So in programming, const keyword is used to declare constant. किसी भी constant वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए const कीवर्ड यूज किया जाता है. कांस्टेंट भी एक वेरिएबल का टाइप होता है, बट इट वैल्यू कान बी चेंज आफ्टर इट इज इनिशियलाइज. अगर अपन वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं और उसको कोई वैल्यू देते हैं तो वो लेटर ऑन सी प्रोग्राम में अपन चेंज कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट. बट इन द कांस्टेंट, इफ वी डिक्लेयर कांस्टेंट, वी कांट चेंज इट्स वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम. इट विल रिमेन सेम थ्रू आउट द प्रोग्राम. It is mainly used to protect the variables from being accidentally modified, making the program safer and easier to understand. These constant can be of various types such as integer, floating point, string and character constant. इसका syntax क्या होता है? Const, as we all know that constant variables are declared with a constant keyword. So first we have to start it with writing the const keyword. Here the data type in which we have to declare the const keyword just like integer, floating, etc. Then the variable name. Variable name, we have to give it a variable name, a unique identity to identify the constant, and then equals to, and then value, and then it is terminated by the semicolon. Let's see the example. In this int main, in the main function, we declare a constant variable with the const keyword, where the const means the constant variable declaration. Int means the type of data in which whose value we want to store in the variable. A is the name of the variable. Equals to is assignment operator, and 10 the value which in the value which we stored in the variable, and then we print the value of the variable A with the printf function, writing the %d. You know, %d is used to print the integer values, and also to scan the integer values we also use %d. So here we write %d, and then we will write the variable A, and here return 0 to return the value, and then the value of A is printed on the screen. नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट द डेटा टाइप्स. सो हमने पढ़ा कि वेरिएबल्स वैल्यू स्टोर करते हैं, पर वो जिस टाइप की वैल्यू स्टोर करते हैं उसे तो डेटा टाइप बोलते हैं. डेटा टाइप सी में बहुत टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द प्राइमरी डेटा टाइप. प्राइमरी डेटा टाइप सी प्रोग्राम के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, और इसमें सबसे पहला डेटा टाइप आता है इंट, जो कि होल नंबर्स स्टोर करते हैं, बिना डेसिमल पॉइंट वाले नंबर स्टोर करते हैं. और ये फर्दर मॉडिफाइड होता है शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, साइंड इंट और अनसाइंड इंट में टू स्पेसिफाई साइज एंड रेंज. अगर हमको स्मॉल वैल्यू स्टोर करनी है तो हम सिंपली इंट यूज लेंगे डेटा टाइप के लिए, बट हमको थोड़ी बिग वैल्यू स्टोर करनी होती है तो हम लॉन्ग इंट भी ले सकते हैं. नेक्स्ट इज द कैर, जो कि सिंगल कैरेक्टर स्टोर करता है एनक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स. ये भी दो टाइप्स के होते हैं, साइन कैर और अनसाइन कैर. रिमेंबर, जब भी हम कैर वैल्यू पास करते हैं किसी भी वेरिएबल में तो उनको ऑलवेज सिंगल कोट्स में एनक्लोज करना इंपॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट इज द फ्लोट. फ्लोट सारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर करता है, मीन्स द डेसिमल पॉइंट नंबर विद सिंगल प्रिसिजन ओनली. फ्लोट वो ही नंबर यूज करता है जो सिंगल प्रिसिजन में होते हैं. डबल भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से ही स्टोर करते हैं, बट वो डबल प्रिसिजन में होते हैं और ये मोर एक्यूरेट होते हैं फ्लोट से ज्यादा. नेक्स्ट इज द वॉइड. वॉइड वो डेटा टाइप होता है जब वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं होती या फिर कोई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, एम्प्टी होता है, तो वहां पे रिटर्न टाइप वॉइड होता है. जस्ट इट इज यूज इन फंक्शन दैट डोंट रिटर्न अ वैल्यू एज अ जेनेरिक पॉइंटर टाइप. So here is the void, which is the return type of the function, and print message is the name of the function. Next type of data is the derived data type, और ये कंस्ट्रक्ट होता है प्राइमरी डेटा टाइप से ही. जो हमने अभी तक पढ़े इंट, कैर, डबल, फ्लोट, इनके कॉम्बिनेशन से ही नेक्स्ट डिराइव्ड डेटा टाइप बनते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है एरे. एरे इज द कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप एक्सेस्ड यूजिंग एन इंडेक्स. सो हमने इंडिविजुअल पढ़ा कि इंट डेटा टाइप होता है जो कि एक ही वैल्यू पास करता है वेरिएबल को, बट इस वैल्यूज के
मल्टीपल वैल्यूज के कॉम्बिनेशन को अगर हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं तो वो होता है एरे। और इसका इनिशियलाइजेशन करते हैं हम सबसे पहले इंट, मतलब कि डेटा टाइप हम इंटीजर का एक एरे बना रहे हैं जिसमें आएंगे नंबर्स जो कि एरे नेम है। फिर आएंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स जिसमें नंबर्स आते हैं कि हमको कितने एलिमेंट्स एंटर करने हैं। फिर इनको इनिशियलाइज करने के लिए हमको कर्ली ब्रेसेस का यूज करना होता है जिसमें हम अगर 5 एलिमेंट्स लिखे हैं हमने एरे के साइज में तो हम यहाँ पे 5 एलिमेंट्स देंगे सेपरेटेड बाय कॉमा। और फिर लास्ट में इट इज टर्मिनेटेड बाय द सेमीकोलन। नेक्स्ट डिराइव्ड डेटा टाइप होता है पॉइंटर। पॉइंटर वो वेरिएबल होते हैं जो अनदर वेरिएबल की मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। जस्ट लाइक हेयर फर्स्ट वी विल initialize first we will declare a pointer as asterisk ptr and then we declare a variable int x equals to 10। so यहाँ पे जो वेरिएबल है int x उसकी एड्रेस की वैल्यू स्टोर हुई पॉइंटर ptr में। सो यहाँ पे लिखा है ptr equals to m%x means m%x refers to the address of x। सो x के एड्रेस की वैल्यू स्टोर होगी ptr में, इसको ही बोलते हैं पॉइंटर वेरिएबल। नेक्स्ट इज द फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि डिजाइन होता है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। और ये जो वैल्यू रिटर्न करता है या तो वो किसी डेटा टाइप में होती है या फिर वो वॉइड होती है। नेक्स्ट थर्ड टाइप के होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। हमने पढ़े बेसिक फंक्शन जो कि फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, डिराइव जो कि कॉम्बिनेशन से बनते हैं प्राइमरी डेटा टाइप्स के, और नेक्स्ट इज द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर खुद भी डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं जिसमें सबसे पहले आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर ग्रुपिंग ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स अंडर सिंगल नेम। एक सिंगल नेम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटा को स्टोर करते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। यूनियन, यूनियन भी स्ट्रक्चर की जैसे सिमिलर होता है बट ऑल द मेंबर्स शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन। ओनली वन मेंबर कैन होल्ड अ वैल्यू एट द सेम टाइम। स्ट्रक्चर और यूनियन दोनों सेम होते हैं बट यूनियन क्या होता है, ये सेम मेमोरी लोकेशन शेयर करते हैं और एक ही मेंबर एक टाइम पे वैल्यू होल्ड करते हैं। Next is the enum, which creates a set of name integer constant। इसके एग्जाम्पल है enum in the name of the variable, और इसमें जो भी वैल्यूज आएगी वो सारी आ जाएगी कर्ली ब्रेसेस में। इसके बाद it is terminated by the semicolon। That's all for the data types। Next is the types of variable। Our next topic is the typecasting। What is typecasting? So typecasting वो प्रोसेस होता है जो एक वेरिएबल और वैल्यू। Next, we will learn about the typecasting. What is typecasting? So, typecasting in C is the process of converting a value from one data type to another। वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर होती है वो जिस डेटा टाइप की होती है उस डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को बोलते हैं टाइपकास्टिंग। Typecasting is done either implicitly or explicitly। Means implicitly it is automatically by the compiler and explicitly manually by the programmer। Implicit typecasting क्या होता है? This occurs automatically when the compiler converts a value from lower data type to higher data type during an operation to ensure data integrity and compatibility। Using the hierarchy below, the conversion would appear as follows if they both have varied data type। इम्प्लिसिट डेटा टाइप क्या करता है? लोअर डेटा टाइप को हायर डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है। लोअर डेटा टाइप मतलब जो स्मॉल वैल्यू स्टोर करता है, और हायर डेटा टाइप वो डेटा टाइप होता है जो बड़ी वैल्यू स्टोर करता है। सो जो लोअर डेटा टाइप्स होता है उनको हायर डेटा टाइप्स में कन्वर्ट करता है, उसको बोलते हैं implicit typecasting। So the lower data type is integer, is the smallest data type, then the unsigned int, then long, then unsigned long, then long long, then unsigned long long, then float, then double, and then long double। It is the sequence from higher data type to lower data type। So implicit typecasting converts the lower data type to higher data type during the operation, और ये इंश्योर करता है डेटा इंटीग्रिटी को और कंपेटेबिलिटी को। नेक्स्ट इज द एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग। एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग क्या होती है? एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग परफॉर्म होती है मैन्युअली बाय द प्रोग्रामर यूजिंग द कास्टिंग ऑपरेटर। है द कास्टिंग ऑपरेटर इज used, which is the new underscore data type। It allows forcing a conversion even if it might lead to data loss। Converting a float to int
means converting a higher data type into the lower data type is the explicit typecasting. Next, we will learn about the operator. सो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स बेसिकली वो सिंबल्स होते हैं जो कि यूज आते हैं किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। वो ऑपरेशन किसी भी टाइप का हो सकता है, जस्ट लाइक मैथमेटिकल, रिलेशनल, बिटवाइज, कंडीशनल और लॉजिकल। किसी भी टाइप के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो सिंबल्स यूज किए जाते हैं अलॉन्ग विद द वैल्यूज और वेरिएबल्स, उनको ऑपरेटर कहा जाता है। और ऑपरेटर जिन वैल्यूज या वेरिएबल्स के साथ यूज किए जाते हैं उनको कहा जाता है ऑपरेंड्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेंड्स, कितने ऑपरेंड्स हमारे पास है प्रोग्राम में, उनके बेसिस पे हम ऑपरेटर्स को थ्री टाइप्स में डिवाइड करते हैं: यूनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर। थ्री टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेंड्स। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। फर्स्ट इज द यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर वो होता है जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है ऑन अ सिंगल ऑपरेंड, which includes the increment and decrement operator. We always increment or decrement the value of only one single variable at a time. So it is included in the unary operator. Next is binary operator. Binary operator वो होता है जो सारे ऑपरेशन दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स या दो या दो से ज्यादा वैल्यूज या दो या दो से ज्यादा ऑपरेंड्स पे परफॉर्म किए जाते हैं, वो सारे ऑपरेटर होते हैं बाइनरी ऑपरेटर, जिसके एग्जांपल्स है एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। जिस एज एन एग्जांपल, जब भी हम नंबर्स ऐड करते हैं तो हमको टू या टू से ज्यादा नंबर्स चाहिए होता है, तो ये होता है बाइनरी ऑपरेटर। मतलब कि दो या दो से ज्यादा नंबर हो गए हमारे ऑपरेंड्स, और एडिशन हो गया ऑपरेटर जिसके थ्रू हम दो या दो से ज्यादा नंबर ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट, टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है? टर्नरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जो तीन ऑपरेंड्स पे वर्क करता है। इसका एग्जांपल है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है? हम कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराने के लिए कंडीशन दे देते हैं कि अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो आगे वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर फॉल्स हुई तो लास्ट वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ये होता है टर्नरी ऑपरेटर। वी विल लर्न अबाउट द टर्नरी ऑपरेटर इन द लेटर लेक्चर्स। That's all for the operators. Now we will learn about the types of operators. तो अभी तक हमने पढ़े टाइप्स ऑफ ऑपरेटर जो कि बेसिस होता है जिनका नंबर ऑफ ऑपरेंड्स, बट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑपरेशन। इन दिस फर्स्ट इज आर अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो कि अर्थमेटिक और मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं किसी भी ऑपरेंड पे। ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जस्ट लाइक एडिशन। ए प्लस बी इज एडिशन, मीन्स वी हैव टू ऐड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। Here the int a equals to 25 and integer b equals to 5. So a had the value of 25 and b have the value of 5. These are the arithmetic operator. Let's see their answers. Then a plus b is 30, means 25 plus 5 is 30. 25 minus 5 is 20. 25 into b 5 means it's 125. मतलब a into b means 25 into 5 is 125. Next is a divided by b, means 25 divided by 5. It gives the answer of 5. But here the a mod b means 25 divided by 5 is 5. But it don't have any remainder, so it is 0. So a mod b means 25 mod 5 gets the remainder of 0. Here the plus a is used to convert the value of variable into positive integer, and minus a is used to convert the value of variable into the negative. Here plus a is 25 itself, but the minus a converts the value of 25 from to minus 25. Here the a plus plus is the post increment operator, and the a minus minus is the post decrement operator. Next is the type of operator is relational operator. तो व्हाट आर रिलेशनल ऑपरेटर? रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है? जो टू या ऑपरेंड्स के बीच में कंपैरिजन बताते हैं। टू ऑपरेट के बीच में कंपैरिजन कैसे? कि वो ऑपरेंड दूसरे ऑपरेंड से लेस देन है, ग्रेटर देन है, या लेस देन और इक्वल है, या फिर ग्रेटर देन और इक्वल है, या तो इक्वल है या नॉट इक्वल्स टू है। ये होता है रिलेशनल ऑपरेटर। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल। हियर we have two integers a equals to 25 and b equals to 5. Here if the result is true, then it will return 1, but if the result is false, it will return 0. So let's see, a is less than b. This is not true because 25 is not less than 5, so it returns the value as 0. Next, a is greater than b. Yes, it is true because 25 is greater than 5, so it returns the value as 1.
Next, A is less than equals to B means 25 is less than equals to B. No, it's not true. So it gives the value 0. Next, A is greater than equals to B. Because 25 is greater than equals to B. So it returns the value 1. Next, A equals to B. This is the operator which tells us about if the two variables value are equal or not. Means we use double equals to check whether the value of both the variables are equal or not. If it is equal, then it returns true as 1, but if it is not equals, it returns 0. So here A is 25 and B is 5, so they are not equal, so it returns 0. Next, A not equals to B. Here the exclamation symbol signifies not equals to. So A is not equals to B. It is true that because 25 is not equals to 5, so it returns 1 as true value. Next we will, here 0 means false and 1 means true. असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होता है वेरिएबल में वैल्यू पास करने की। जब भी हम किसी वेरिएबल में वैल्यू पास करते हैं तो लेफ्ट साइड में वेरिएबल नेम आता है और राइट साइड में उसकी वैल्यू आती है। either it's direct, we can directly assign the value, or either we can assign the value through another variable, just like here it is shown that A equals to B. Then we will also write A equals to 5, and we will also write A equals to B and then B equals to 5. So we can assign the value in both the types. Assignment operators can be combined with some other operators in C to provide multiple operations using single operator. These operators are called कंपाउंड ऑपरेटर्स। इनको कंपाउंड ऑपरेटर्स बोलते हैं जब असाइनमेंट ऑपरेटर डिफरेंट ऑपरेटर से कंबाइन होकर मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास है सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर होता है इक्वल्स टू साइन, जो असाइन करता है वैल्यू को राइट ऑपरेंड से लेकर लेफ्ट ऑपरेंड में। प्लस इक्वल्स टू क्या होता है? इट एड्स द राइट ऑपरेंड एंड द लेफ्ट ऑपरेंड एंड असाइन द वैल्यू टू द लेफ्ट ऑपरेंड। वो राइट और लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू को ऐड करता है और लेफ्ट ऑपरेंड में स्टोर कर देता है। नेक्स्ट इज माइनस एंड असाइन। माइनस एंड असाइन यूज होता है जब दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू में से ए में से बी माइनस कर दिया जाता है और उसकी वैल्यू असाइन हो जाती है वापस से ए में। इसको बोलते हैं माइनस एंड असाइन। नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई एंड असाइन। मल्टीप्लाई द राइट ऑपरेंड एंड द लेफ्ट ऑपरेंड। राइट और लेफ्ट ऑपरेंड दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उसके बाद जो वैल्यू है उसको लेफ्ट ऑपरेंड में असाइन कर देंगे। इसको बोलते हैं मल्टीप्लाई एंड असाइन। Next is divide and assign. Divide left by right means A is divided by the B and then the value is assigned to the A. It is called divide and assign. Next is modulus and assign. What is modulus and assign? Assign the remainder of the division of left from right. Means A divided by B का जो remainder होगा उसकी value assign करेंगे B को। ये होता है modulus and assign. नेक्स्ट एंड एंड असाइन। परफॉर्म करते हैं बिटवाइज एंड ऑपरेशन और असाइन करते हैं उसकी वैल्यू लेफ्ट ऑपरेंड में। इसको बोलते हैं एंड एंड असाइन। नेक्स्ट इज और एंड असाइन। परफॉर्म बिटवाइज और ऑपरेशन एंड असाइन दिस वैल्यू टू द लेफ्ट ऑपरेंड। इट इज कॉल्ड और एंड असाइन। नेक्स्ट इज एक्सॉर एंड असाइन। Perform bitwise XOR operation and assign this value to the left operand, then it is called the XOR and assign. Next is right shift and assign. Perform bitwise right shift and assign this value to the left operand. Then it is called the right shift and assign operator. Next is left shift and assign. Perform bitwise left shift and assign this value to the left operand. It is called left shift and assign operator of assignment operator. तो द नेक्स्ट इज द बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है? बिटवाइज ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जो बिट लेवल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है ऑपरेंड्स पे। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? पहले कन्वर्ट होते हैं बिट लेवल पे और वो कैलकुलेशन परफॉर्म करता है ऑपरेंड्स पे। मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एटसेट्रा कैन बी परफॉर्म एट द बिट लेवल फॉर फास्ट प्रोसेसिंग। और इसके ऑपरेटर होता है बिटवाइज एंड। बिटवाइज एंड ऑपरेटर क्या होता है? विच परफॉर्म बिट बाय बिट एंड ऑपरेशन एंड रिटर्न द रिजल्ट। बिटवाइज और ऑपरेटर। बिटवाइज और ऑपरेटर क्या होता है? बिटवाइज और ऑपरेटर होता है विच परफॉर्म बिट बाय बिट और ऑपरेशन एंड रिटर्न द रिजल्ट। बिटवाइज एक्सऑर
ऑपरेटर क्या होता है? बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर होता है जो परफॉर्म करता है बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेशन बिट बाय बिट और फिर रिटर्न करता है रिजल्ट को। बिटवाइज फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो फ्लिप करता है ऑल द सेट्स एंड अनसेट बिट्स ऑन द नंबर। ये होता है बिटवाइज फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट इज बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है? ये शिफ्ट करता है बिट्स टू द लेफ्ट बाय द गिवन नंबर ऑफ द पोजीशन एंड मल्टीप्लाइज द नंबर बाय 2 फॉर ईच शिफ्ट। फिर नेक्स्ट है बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर जो कि शिफ्ट करता है बिट्स टू द राइट बाय द गिवन नंबर ऑफ द पोजीशंस और डिवाइड करता है नंबर को 2 से फॉर ईच शिफ्ट। इसके अलावा हमारे पास अदर ऑपरेटर्स भी होते हैं। इसमें आता है हमारी सबसे पहले साइज ऑफ ऑपरेटर यूज होता है सी में। इट इज अ कंपाइल टाइम यूनरी ऑपरेटर विच इज यूज टू कंप्यूट द साइज ऑफ द ऑपरेंड। ये किसी भी ऑपरेंड के साइज को कंप्यूट करने के काम में आता है। और the result of the size of is of integral type which is of unsigned integral type which is usually denoted by size underscore t। और basically size of operator use आता है size कंप्यूट करने के लिए whether it is variable और data type। नेक्स्ट है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है? कंडीशनल ऑपरेटर इज द ओनली टर्नरी ऑपरेटर जो कि सी और सी प्लस प्लस में यूज होता है। कंडीशनल ऑपरेटर वो होता है विच वी कैन यूज इन प्लेस ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट के प्लेस पे जो हम ऑपरेटर मतलब कि इफ एल्स स्टेटमेंट का शॉर्ट हैंड जो हम यूज करते हैं वो कंडीशनल ऑपरेटर होता है। इसमें तीन पार्ट्स होता है जिसमें एक्सप्रेशन फर्स्ट में कंडीशन इवेल्युएट होती है, एक्सप्रेशन सेकंड में ट्रू कंडीशन होती है कि अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू हुई तो सेकंड एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा या सेकंड वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो थर्ड वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी। ये होता है कंडीशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर है एड्रेस ऑफ। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या होता है? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर रिटर्न करता है वेरिएबल के एड्रेस को इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी लोकेशन। That's all for the operators.